అందరూ వారి వారి గోత్రములు, నామధేయము, నక్షత్రము, కుటుంబంలోని సభ్యుల నామధేయము మనసులో ఒకసారి సంకల్పించండి. எல்லாரும் அவளுடைய கோத்திரம், நாமதேயம், நட்சத்திரம், குடும்பத்தில் எல்லாருடைய நாமதேய நட்சத்திரம் ஒரு வாட்டி மனசுல சங்கல்பம் பண்ணுங்கோ. நான் பனியன் போட்டு உட்காந்துருக்கேன் பாருங்க. பனியன் சர்வேஷாம் பக்தஜனானாம் க்ஷேமஸ்தைரிய விஜய வீரிய ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தம் தர்மார்த்த காம்யமோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் மனோவாஞ்சதா பலசித்தியர்த்தம் ஆரோக்கிய திருடகாத்திர வஜ்ரசரீராபிவிருத்தியர்த்தம் லோகக்ஷேமாபிவிருத்தியர்த்தம் ஸ்ரீ பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாச கிருபாகடாட்ச சித்தியர்த்தம் கல்யாண மகோத்சவம் ஆச்சாரிய முகேன அத்ய கரிஷ்யே சர்வம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷார்ப்பணமஸ்து. கோவிந்தா. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మే నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపిణే సమస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు విద్యారూపిణే సమస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపిణే సమస్థిత நமஸ்தசை 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 நமோ நமஹா என்று அந்த திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை சேவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா இதோ சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலியன் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமஹ. தாயாருடைய அனுகிரகத்தை சதா சர்வ காலமும் பெறுவோம். இன்று குருவாரம் என்கின்ற வியாழக்கிழமை, சதயம் நட்சத்திரம், பௌர்ணமியுடன் கூடிய பாட்யமி என்று பிரதமை என்று சொல்வார்கள். ஆக இந்த குருவார நன்னாளிலே அந்த வக்ஷஸ்தல நாயகியான பத்மாவதி தாயார் ஸ்ரீனிவாசனை திருமணம் செய்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறாள். அவருக்கு இன்று நேத்திர தரிசனம் கொடுக்கிறார் பக்தர்களுக்கு. அந்த ஸ்ரீனிவாசன் இதோ இங்கே எழுந்தருளி இருந்து அருள் பாலிக்கும் பக்தர்களை காப்பதற்காக திருச்சானூருக்கு வந்து அந்த தாயாரை திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார். தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேனா முதலியன் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவசனம் ஆரம்பமாகிறது. பரமாத்மாவான ஸ்ரீஹரிக்கு நித்யோத்சவ மூர்த்தியான வேங்கடவனின் பட்டத்து ராணி அலர்மேல் மங்கை கிருத்தயுகத்திலே பிருகு மகர்ஷிக்கு மகளாகவும் க்ஷீரசாகரத்தின் மகளாக அவிர்பவித்த லக்ஷ்மி கலியுக ஆரம்பத்திலே திருச்சானூரிலே பத்ம சரோவரம் என்கின்ற பத்ம புஷ்கரணியிலிருந்து அலர்மேல் மங்கையாக அவிர்பவித்தாள். திரிமூர்த்திகளில் சத்வகுணம் யாரிடம் உள்ளதோ தெரிந்து கொள்வதற்கு பிருகு மகர்ஷி கிளம்பினார். சத்தியலோகம் சென்று பிரம்மாவையும் கைலாசம் சென்று சிவனையும் பரீட்சை செய்தாராம். அவர்கள் இருவரிடத்திலும் இருந்து ரஜோகுணம் தமோகுணம் மட்டுமே இருந்தது. சுத்த தத்துவ சம்பந்தப்பட்ட தேஜஸ் தென்படவில்லை. சராசரி வைகுண்டம் சென்று பாம்பு படகின் மேல் லக்ஷ்மி தேவியுடன் சரசமாடிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் வக்ஷஸ்தலம் மீது கால் எட்டி விதைத்தானாம். தன் மார்பின் மீது எட்டி விதைத்தாலும் தேவதேவனான ஸ்ரீஹரி அந்த மகர்ஷியை மன்னித்து ஆசனத்தில் அமரச் செய்து பாதாபி வந்தனம் செய்வது போல் அவருடைய பாதத்தில் இருக்கும் மூன்றாவது கண்ணை அழுத்தி விடுகிறார். ஏனெனில் பிருகு மகர்ஷியின் அகங்காரம் எல்லாம் அந்த மூன்றாவது கண்ணில் தான் இருந்தது. எப்பொழுது அந்த கண்ணானது நிர்மூலம் செய்யப்பட்டதோ பிருகு மகர்ஷியின் அகங்காரமும் எல்லாம் அடங்கி
அந்த தேவதேவனை அனந்த சத்திய மூர்த்தியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டான். ஆனால் பிருகு முனிவர் விஷ்ணு வக்ஷஸ்தலத்தை தன் பாதத்தினால் எட்டி உதைத்ததினால் நித்யானபாயினி ஆன லக்ஷ்மி தேவி விஷ்ணு அந்த வக்ஷஸ்தலத்து நிவாசினியானதால் அவளுக்கு கோபம் வந்து அவள் கோபமெல்லாம் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் மீதே இருந்தது. தனக்கு தீராத அவமானம் நடந்ததாக நினைத்து வைகுண்டத்தை விட்டு வெளியேறினாள் தாயார். தன்னை விட்டு சென்ற லக்ஷ்மி தேவியை தொடர்ந்து ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவும் கிளம்பி சென்றார். அந்த லக்ஷ்மி தேவி விஷ்ணுவை விட்டு பிரிந்து சென்றவுடன் நேராக பாதாள உலகிற்கு சென்று கபில மகரிஷியின் உதவியை நாடினார். அங்கு சிறிது காலம் தங்கினாள். அப்படிப்பட்ட அந்த லக்ஷ்மி தேவி பத்மாவதியாக திருச்சானூரிலே எழுந்தருளி இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நமஹா, மகாதல்லி என்று மகாதாய் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம் ஆரம்பமாகியது. அந்த திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த தாயாரானவள் மகாலட்சுமி ஆனவள் பூலோகத்தில் கொல்லாப்பூரிலே அகஸ்திய மகரிஷி லக்ஷ்மியை அர்ச்சாமூர்த்தியாக பிரதிஷ்டை செய்து தினமும் சேவித்து கொண்டிருந்தாராம். அவருடைய சேவைகளுக்கு மெச்சி நேரடியாக பிரத்யக்ஷமாகி லக்ஷ்மி தேவி கொல்லாப்பூருக்கு எழுந்தருளி பூஜைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது எத்தனையோ பேர் மகரிஷிகள் அந்த தாயாரை சேவித்து கொண்டுள்ளனர். லக்ஷ்மி தேவியை தேடிக்கொண்டு ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் கூட கொல்ஹாப்பூரில் உள்ள லக்ஷ்மி தேவியை சேவித்தாராம். ஆனால் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு அவள் பிரசன்னமாகவில்லை. ஒரு நாள் அவள் பிரிவை தாழாமல் இருந்ததை பார்த்து ஆகாசவாணியான சரஸ்வதி தேவி இப்படி கூறுகிறாள்: லக்ஷ்மி தரிசனத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கும் ஓ விஷ்ணு தேவா, இங்கிருந்து சராசரி தெற்கு திசைக்கு சென்று 20 யோஜனை தூரத்திலே உள்ள ஸ்வர்ணமுகி நதிக்கரைக்கு சென்று इन्द्रियकामस्येति इन्द्रियाकामस्य सर्वान् समान् प्रतिष्ठाकामस्येति प्रतिष्ठाकामस्य ये त्रयः तान् समान् पशुकामस्येति पशुकामस्य एतान् वै अन्वितिमशवः उपेति तिष्ठन्ते पशुमानिति पशुमान् एव भवति व्यतिषजेदिति अतिशजेत् इतरान् प्रजयेति प्रजया एव पशुभिरिति पशुभिः व्यतिषजतीति वि अतिशजति यं कामयेत प्रमायुक इति प्रमायुकः स्यात् इति गर्तमितमिति गर्तमितं तस्य विनुयात् उत्तरार्ध्यमित्युत्तरार्ध्यं परिशिष्टम् अथ ह्रसीयागुंसम् एषा वै गर्तमिदिति गर्तमित् यस्य एवं विनोति ताजक प्रेति मीयते दक्षिणार्ध्यमिति दक्षिणार्ध्यं परिशिष्टम् विनुयात् सुवर्गकामस्येति सुवर्गकामस्य अथ ह्रसीयागुंसम् आक्रमणमित्याक्रमणम् एव तत् सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य यत् एकस्मिन् यूपे द्वे इति दशने इति परिव्ययतीति परिव्ययति तस्मात्
एकः द्वे इति जाये इति विन्दते यत् न एकां दशना द्वयोः यूपयोः परिव्ययतीति परिव्ययति तस्मात् न एका द्वौ पति इति विन्दते यं कामयेत स्त्री अस्य जायेत इति उपान्त इत्युपान्ते तस्य व्यतिषजेदिति वि अतिषजेत् स्त्री एव अस्य जायते यं कामयेत पुमान् अस्य जायेत इति आन्तमित्या अन्तं तस्य प्रेति वेष्टयेत् पुमान् एव अस्य असुराः वै देवान् दक्षिणतः उपेति अनयन् तान् उपशयेनेत्युपशयेन एव अपेति अनुदन्त तत् उपशयस्येत्युपशयस्य उपशयत्वमित्युपशयत्वं यत् दक्षिणतः उपशय इत्युपशये भ्रातृव्यापनुत्या इति भ्रातृव्या अपनुत्यै सर्वे वै अन्ये यूपाः पशुमन्त इति पशुमन्तः अथ उपशय इत्युपशयः एव अपशुः तस्य यजमानः यत् न निर्दिशेदिति निदिशेत् आर्तिम् एति यजमानः असौ ते पशुः निरिति दिशेत् यम् एव द्वेष्टि तम् अस्मै पशून् न निरिति पशुः इति ब्रूजाते पशून् हिनस्ति न आरण्यान् प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजता सह अन्नाद्येन यन्ना अद्येन वीति आर्ध्यता एकादशिनीम् अपश्यत् तया वै सः अन्नाद्यमित्यन्ना अद्यम् अवेति अरुन्धा यत् दशा यूपाः भवन्ति दशा अक्षरेति दशा विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्ना अद्यम् अवेति रुन्धे यः एकादशः स्तनः एव अस्यै सः दुहे एव एना तेन वज्रः वै एषा समिति मीयते यत् एकादशिनी सा ईश्वरा पुरस्तात् प्रत्यञ्चम् पात्नीवतमिति पात्नीवतं मिनोति यज्ञस्य प्रतीति उत्तभ्या इत्युत स्तभ्यै सयत्वायेति सयात्वाया त्रिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजता सह रिरिछानः अमन्यता सह एताम् एकादशिनीम् अपश्यत् तया वै सह आयुः इन्द्रियम् वीर्यम् आत्मन् अधत्ता प्रजा इति प्राजाः इव खलु वै एषः यः यजते सः एतरिः रिरिचानः इव यत् एषा एकादशिनी भवति आयुः एव तया इन्द्रियम् वीर्यम् यजमानः आत्मन् धत्ते प्रेति एव आग्नेयेन वापयति मिथुनम् सारस्वत्या करोति रेतः दधाति प्रेति जनयति पौष्णेन बार्हस्पत्यः भवति ब्रह्मा वै देवानाम् ब्रह्मणा एव अस्मै प्रजा इति प्राजाः प्रेति जनयति वैश्वदेव इति वैश्वदेवः वैश्वदेव्य इति वैश्वदेव्यः वै प्रजा इति प्राजाः
प्रजा इति प्राजाः एव अस्मै प्रेति जनयति इन्द्रियम् एव ऐन्द्रेण अवेति रुन्धे विषं मारुतेन ओजः बलम् ऐन्द्राग्नेनेत्यै इन्द्र अग्नेन प्रसवायेति प्रसवाय निर्वरुणत्वायेति निर्वरुणत्वाय वारुणः मध्यतः ऐन्द्रम् एति लभते मध्यतः एव इन्द्रियम् यजमाने दधाति पुरस्तात् ऐन्द्रस्य वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् एति लभते वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् वै अन्नम् एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् पुरस्तात् अन्नम् अद्यते ऐन्द्रम् आलभ्येत्या आलभ्य मारुतम् एति लभते विट् वै मरुतः विषम् एव अस्मै अन्विति बध्नाति यदि कामयेत यः अवगत इत्यवगतः सः अपेति अपरुद्ध इत्यपरुद्धः सः अवेति गच्छतु इति ऐन्द्रस्य लोके वारुणम् एति लभेत वारुणस्य लोके ऐन्द्रम् यः एव अवगत इत्यवगतः सः अपेति रुध्यते यः अपरुद्ध इत्यपरुद्धः सः अवेति यदि कामयेत प्रजा इति प्राजाः मुह्येयुः इति पशून् व्यतिषजेदिति वि अतिषजेत् प्रजा इति प्राजाः एव मोहयति यत् अभिवाहत इत्यभिवाहतः अपातेत्या लभेत प्रजा इति प्राजाः वरुणः दक्षिणतः उदञ्चम् एति लभते अपवाहत इत्यपवाहतः अपा प्रजानामिति प्राजाना अवरुणग्राहायेत्यवरुणग्राहाय इन्द्रः पत्न्या मनुम् अयाजयत् ताम् पर्यग्निकृतामिति पर्यग्निकृताम् उदिति असृजत् तया मनुः आर्ध्नोत् यत् पर्यग्निकृतमिति पर्यग्निकृतम् पात्नीवतमिति पात्नीवतम् उत्सृजतीत्युत सृजति या एव मनुः ऋद्धिम् आर्ध्नोत् ता एव यजमानः ऋध्नोति यज्ञस्य वै अप्रतिष्ठितादित्यप्रतिष्ठितात् यज्ञः परेति भवति यज्ञम् पराभवन्तमिति पराभवन्तम् यजमानः अनुपरेति भवति यत् आज्येन पात्नीवतमिति पात्नीवतम् सर्गस्थापयतीति संस्थापयति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यज्ञम् प्रतिष्ठन्तमिति प्रतिष्ठन्तम् यजमानः अनुप्रतीति तिष्ठति इष्टम् वपया भवति अनिष्टम् वशया अथ पात्नीवतेनेति पात्नीवतेन प्रेति चरति प्रेति चरति अथो इति एतरिहि एव अस्य यामः त्वाष्ट्रः भवति त्वष्टा वै रेतसः सिक्तस्य रूपाणि वीति करोति तम् एव वृषाणम् पत्नीषु अपीति सृजति सः अस्मै रूपाणि वीति करोति एतत् सोमम् यत् अभिशृण्वन्तीत्यभिशृण्वन्ति यत् सौम्यः भवति यथा मृताय अनुस्तरणीमित्यनुस्तरणी घन्ति तादृक् एव तत् यत् उत्तरार्ध इत्युत्तरार्धे वा मध्ये वा जुहुयात् देवताभ्यः समदमिति समदम् दध्यात् दक्षिणार्ध इति दक्षिणार्धे जुहोति एषा वै पितॄणां दिक् स्वाया दिशि पितॄन् निरवदयत इति निः अवदयते उद्गातृभ्य इत्युद्गातृभ्यः
सामदेवत्य इति सामदेवत्यः वै सौम्यः यत् एव साम्नः छम्बट् कुर्वन्तीति छम्बट् कुर्वन्ति तस्य एव सः शान्तिः अवेति ईक्षन्ते पवित्रं वै सौम्यः आत्मानम् एव पवयन्ते यः आत्मानं न परिपश्येदिति पश्येत् इतासुरितीता असुः स्यात् अभिददिमित्यभिददिम् कृत्वा अवेति ईक्षेत तस्मिन् हि आत्मानं परिपश्यतीति अथो इति आत्मानम् एव पवयते यः गतमना इति गता मनाः स्यात् सः अवेति ईक्षेत यत् मे मनः परागतमिति यत् मे अपरागतमित्यपरागतं राज्ञा सोमेन तत् वयम् अस्मासु धारयामसि इति मनः एव आत्मन् दाधार न गतमना इति गता मनाः भवति अपेति वै तृतीयसवन इति तृतीया सवने यज्ञः क्रामति ईजानात् अनीजानम् अभीति आज्ञा वैष्णव्येत्या आज्ञा वैष्णव्या ऋचा घृतस्य यजति अग्निः सर्वा आह देवता आह विष्णुः यज्ञः देवता आह च एव यज्ञं च दाधार उपागिष्वित्युप अगुंषु यजति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति मित्रः यज्ञस्याशिष्टमिति सो इष्टम् युवते वरुणः दुरिष्टमिति दुः इष्टम् क्व तर्हि यज्ञः क्व यजमानः भवति इति यत् मैत्रा वरुणीमिति मैत्रा वरुणीं वशाम् आलभत इत्या आलभते मित्रेण एव तु इष्टं शमयति वरुणेन दुरिष्टमिति दुः इष्टं न आर्तिम् एति ऋच्छति यजमानः यथा वै लाङ्गलेन उर्वरा प्रभिन्दन्तीति प्रभिन्दन्ति एवं ऋक्सामे इत्युक् सामे यज्ञं प्रेति भिन्तः यत् मैत्रा वरुणीमिति मैत्रा वरुणे वशाम् आलभत इत्या आलभते यज्ञाय एव प्रभिन्नायेति प्रभिन्नाय मत्यम् अन्ववास्यतीत्यनु अवास्यति शान्त्यै यातयामानीति यातायामानि वै एतस्य छन्दागुंसि यः ईजानः छन्दसा वै एषः रसः यत् वशा यत् मैत्रा वरुणीमिति मैत्रा वरुणे वशाम् आलभत इत्या आलभते छन्दागुंसि एव पुनः अयातयामत्वायेत्ययातयामत्वाय अथो इति छन्दस्रिति छन्दः सु एव रसं दधाति वै इन्द्रियम् वीर्यं पीति अभजन्त ततः यत् अत्यशिष्यतेत्यति अशिष्यता तत् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्या आह अभवन् तत् अतिग्राह्यानामित्यति ग्राह्याना अतिग्राह्यत्वमित्यतिग्राह्यात्वं यत् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्या आह दृश्यन्ते इन्द्रियम् एव तत् वीर्यं यजमानः आत्मन् धत्ते तेजः आग्नेयेन इन्द्रियम् ऐन्द्रेण ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं सौर्येण उपस्तम्भनमित्युपस्तम्भनं वै एतत् यत् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्या आह चक्रे इति पृष्ठानि यत् पृष्ठे न गृह्णीयात् पृष्ठानि समिति शृणीयुः यत् उक्थे गृह्णीयात् प्रत्यञ्चं यज्ञम् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्या वै इन्द्रियं
पीति अपजन् ततः यत् अत्यशिष्यतेत्यति अशिष्यत तत् अतिग्राह्य इत्यति ग्राह्याः अभवन् तत् अतिग्राह्यानामित्यति ग्राह्यानाम् अतिग्राह्यत्वमित्यतिग्राह्यत्वम् यत् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्याः गृह्यन्ते इन्द्रियम् एवातत् वीर्यम् यजमानः आत्मन् धत्ते तेजः आग्नेयेन इन्द्रियम् ऐन्द्रेण ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं सौर्येण उपस्तम्भनमित्युपस्तम्भनं वै एतत् यत् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्या चक्रे इति पृष्ठानि यत् पृष्ठे न गृह्णीयात् प्राञ्चं यज्ञं पृष्ठानि समिति श्रेणीयुः यत् उक्थे गृह्णीयात् प्रत्यञ्चं यज्ञम् अतिग्राह्या इत्यति ग्राह्याः समिति श्रेणीयुः विश्वजितीति विश्वाजिति सर्वपृष्ठ इति सर्वपृष्ठेः गृहीतव्याः ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம். திருவேங்கடமுடையானுடைய கரத்திலே தாயாருடைய கரத்தினை வைத்து சாலங்குருத்த கன்னியாதானம் செய்து அதன் பிறகு அந்த பிரவரைகளை கூறுவார்கள். 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறி சாலங்குருத்த கன்னியாதானம் செய்வார்கள். அந்த வம்சத்தில் 21 தலைமுறைகள் செழிக்குமாம் இந்த கன்னியாதானம் செய்வதனால். முக்கியமாக கார்த்திகை மாதத்திலே கன்னியாதானம் செய்தால் அதிக பலனை பெறலாமாம். அப்படி திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது மகா சங்கல்பம் சாலங்குருத்த கன்னியாதானம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அந்த பத்மாவதி தாயாரை திருமணம் செய்து கொடுப்பதாக இந்த சாலங்குருத்த கன்னியாதான கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி தரிசனத்திற்காக காத்திருப்பார்கள் அனைவரும். இன்று குருவாரம், அதாவது வியாழக்கிழமை லக்ஷ்மி வாரம் என்றும் சொல்லுவார்கள். சிராவண மாதத்திலே குருவாரம், ஆவணி மாதம். அப்படி அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக பத்ம சரோவரத்திலே ஆவிர்பவித்தவள் அந்த பத்மாவதி தாயார். ஆக அதனால்தான் அவளுக்கு பத்மாவதி என்றும், தாமரை மலரில் ஆவிர்பவித்தவள் ஆகையால் தாமரை மலராள் என்றும், பக்தர்களுக்கு அருள் புரியும் மனபாயினி ஆதலால் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அனபாயினி என்று கூறப்படும் லக்ஷ்மி தேவி இங்கே பத்மாவதி தாயாராக எழுந்தருளி திருச்சானூரிலே தன்னுடைய அதிக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் தாயார். யஜ்ஞஸ்ய சவீர்யத்வாயேதி சவீர்யாத்வாயா பிரஜாபதிரிதி பிரஜாபதிஹ தேவேभ्यः யஜ்ஞான் வியாதிஷதிதி வி ஆதிஷத் சஹ பிரியாः அபாநீதி அதத்தா தத் அதிக்ராஹ்யா இத்யதி கிராஹ்யாः அபவன் விதனுரிதி வி தனுः தஸ்யா யஜ்ஞः இதி யஸ்ய அதிக்ராஹ்யா इत्यति ग्राह्याः न गृह्यन्ते इति अपीति अग्निष्टोम इत्यग्नि स्तोमे यज्ञस्य सतनुत्वायेति सतनुत्वाय देवताः वै सर्वाः सदृशीः आसन्नताः न व्यावृतमिति वि आवृतम् अगच्छन् ते देवाः एते एतान् ग्रहान् अपश्यन् तान् अगृह्णत आग्नेयम् अग्निः ऐन्द्रम् इन्द्रः सौर्यं सूर्यः ततः वै ते अन्याभिः देवताभिः व्यावृतमिति वि आवृतम् अगच्छन् यस्य
एवं विदुषः एते ग्रहाः गृह्यन्ते व्यावृतमिति वि आवृतम् एवापात्मना भ्रातृव्येन गच्छति इमे लोकाः ज्योतिष्मन्तः समावद्वीर्य इति समावत् कार्याः इति आहुः आग्नेयेन अस्मिन् लोके ज्योतिः धत्ते ऐन्द्रेण अन्तरिक्षे इन्द्रवायु इति इन्द्रवायु हि सयुजाविति सायुजौ सौर्येण अमुष्मिन् लोके ज्योतिष्मन्तः अस्मै इमे लोकाः भवन्ति समावद्वीर्यानिति समावत् वीर्यान् कुरुते एतान् वै ग्रहान् बम्बा विश्ववयसाविति बम्बा विश्ववयसौ अवित्ता ताभ्याम् इमे लोकाः पराञ्चः च अर्वाञ्चः च प्रेति अभुः यस्य एवम् एते ग्रहाः गृह्यन्ते प्रेति अस्मै इमे लोकाः पराञ्चः च अर्वाञ्चः च भान्ति वै यत् यज्ञे अकुर्वता तत् असुराः अकुर्वता ते देवाः अदाभ्ये छन्दागुंसि सवनानि समिति अस्थापयन् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यस्य एवं विदुषः अदाभ्यः गृह्यते भवति आत्मना परेति अस्य भवति यत् वै देवाः असुरान् अदाभ्येन अदभ्नुवन् तत् अदाभ्यस्य अदाभ्यत्वमित्यदाभ्यात्वम् यः एवं वेद दब्नोति एव भ्रातृव्यं न एनं भ्रातृव्यः दब्नोति एषा वै प्रजापतेरिति प्रजापतेः अतिमोक्षिणीत्यतिमोक्षिणी नाम तनूः यत् अदा उपनद्धस्येत्युपनद्धस्य गृह्णाति अतिमुक्त्या इत्यतिमुक्त्यै अतीति पाप्मानं भ्रातृव्यम् उच्यते यः एवं वेदाघ्नन्ति वै एतत् सोमम् सुन्वन्ति सोमे हन्यमाने यज्ञः हन्यते यजमानः ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं तत् यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति इति जीवग्रह इति जीवग्रहः वै एषः यत् अदाभ्यः अनभिषुतस्य जनभिसुतस्य गृह्णाति जीवन्तम् एव एनं सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् यति स्थापयन्तीति संस्थापयन्ति अगुंशून् अपीति सृजति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै देवाः वै प्रबाहुगिति प्रबाहुकग्रहान् अगृह्णता सह एतं प्रजापतिरिति प्रजापतिः अगुंशुम् अपश्यत् तम् अगृह्णीता तेन वै सह आर्ध्नोत् यस्य एवं विदुषः अगुंशुः गृह्यते रुध्नोति एव सकृदभिषुतस्येति सकृत् अभिषुतस्य गृह्णाति सकृतिः सह तेन आर्ध्नोत् मनसा गृह्णाति मनः इव हि प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्यै ऊर्क वै उदुम्बरः ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे चतुस्रक्तीति चतुःस्रक्ति भवति दिक्षु प्रतीति तिष्ठति यः वै अगुंशोः आयतनमित्या आयतनम् वेद आयतनवानित्यायतनवान् भवति वामदेव्यमिति वामदेव्यम् इति सामा तत् वै अस्य आयतनमित्या आयतनम् मनसा गायमानः गृह्णाति आयतनवानित्यायतनवान् एव भवति यत् अध्वर्युः
अगुंशुं गृह्णन् न अर्धयेत् उभाभ्यां न ऋध्येत अध्वर्यवे च यजमानाय च अर्धयेत् उभाभ्याम् अनवानमित्यनवा अनं गृह्णाति सा एव अस्या ऋद्धिः हिरण्यम् अभिवीति अनिति अमृतं वै हिरण्यम् आयुः प्राण इति प्राणः आयुषा एव अमृतम् अभीति शतमानमिति शतमानं भवति शतायुरिति शता आयुः पुरुषः शतेन्द्रिय इति शता इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रतीति तिष्ठति प्रजापतिरिति प्रजापतिः देवेभ्यः यज्ञान् व्यादिशदिति वि आदिशत् सः रिरिचानः अमन्यता सः यज्ञानां षोडशधेति षोडशधा इन्द्रियं वीर्यम् आत्मानम् अभिसमिति अक्षिदत् तत् षोडशी अभवत् न वै षोडशी नाम यज्ञः अस्ति यत् वाव षोडशं स्तोत्रं षोडशं शस्त्रं तेन षोडशी तत् षोडशिनः षोडशित्वमिति षोडशी त्वं यत् षोडशी गृह्यते इन्द्रियम् एव तत् वीर्यं यजमानः आत्मन् धत्ते देवेभ्यः वै सुवर्ग इति सुवहागः लोकः न प्रेति अभवत् ते एतं षोडशिनमिति षोडशिनम् अपश्यन् तम् अगृह्णत ततः वै तेभ्यः सुवर्ग इति सुवहागः लोकः प्रेति अभवत् यत् षोडशी गृह्यते स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिजित्या इत्यभिजित्यै इन्द्रः वै देवानाम् आनुजावर इत्यानुजावरः आसीत् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति तस्मै एतं षोडशिनं प्रेति अयच्छत् तम् वै सः अग्रं देवतानां परीति ऐत् यस्य एवं विदुषः षोडशी गृह्यते अग्रम् एव समानानां परीति एति प्रातः सवन इति प्रातः सवने गृह्णाति वज्रः वै षोडशी वज्रः प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं स्वात् एव एनं योने निरिति गृह्णाति सवने सवन इति सवने सवने गृह्णाति सवन सवने सवन इति सवने सवने गृह्णाति सवनात् सवनादिति सवनात् सवनात् एव एनं प्रेति जनयति तृतीय सवन इति तृतीय सवने पशुकामस्येति पशुकामस्य गृह्णीयात् वज्रः वै षोडशी मिति तृतीय सवनं वज्रेण एव अस्मै तृतीय सवनादिति तृतीय सवनात् पशून् अवेति रुन्धे न उक्ष्ये प्रजेति प्राजा वै पशवः उत्थानि यत् उक्ष्ये गृह्णीयात् रात्र इत्यति रात्रे पशुकामस्येति पशुकामस्य गृह्णीयात् वज्रः वै षोडशी वज्रेण एव अस्मै पशून् अवरुध्येत्यवरुध्य रात्रिया उपरिष्टात् शमयति अपीति अग्निष्टोम इत्यग्नि स्तोमे राजन्यस्य गृह्णीयात् व्यावृत्काम इति व्यावृत्कामः हि राजन्यः यजते साह्न इति सा अह्ने एव अस्मै वज्रं गृह्णाति सः एनं वज्रः भूत्यै इन्धे निरिति वा एकविगंशमित्येकविगंशं स्तोत्रं भवति प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै हरिवदिति हरिवत् इन्द्रस्य प्रियं धाम यत्सम्भूतं भूतं यत्र केतुः प्रभानाभान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपद्यस्तपन्नभितपन्
रोचनो रोचमानः शोभन शोभमान कल्याणः అలివేణిని పెళ్ళాడవయా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని
शक्नोति कनीयागुंसि देवेषु छन्दागुंसि आसन्न ज्यायागुंसि असुरेषु ते देवाः कनीयसा छन्दसा ज्यायः छन्दः अभिवीति अशगुंसन् ततः वै ते असुराणां लोकम् अवृञ्जता यत् कनीयसा छन्दसा ज्यायः छन्दः अभीति विषगुंसतीति विषगुंसति भ्रातृव्या एवातते यज्ञं वृन्ते अक्षराणि अतीति रेचयन्ति षट् वै ऋतवः एव प्रीणाति चत्वारि पूर्वाणि अवेति कल्पयन्ति चतुष्पद इति चतुः पदः एव पशून् अवेति रुन्धे द्वे इति उत्तरे इत्युत्तरे एव अवेति रुन्धे अनुष्टुभमित्यनुष्टुभम् अभीसमिति पादयन्ति वै अनुष्टुमित्यनुष्टुप तस्मात् प्राणानामिति प्राणानां वाक् उत्तमेत्युत्तमा समया विशित इति समया विशिते सूर्ये षोडशिनः उपाकरोतीत्युपाकरोति एतस्मिन् वै लोके इन्द्रः वृत्रम् अहन् साक्षादिति साक्षात् एवा वज्रं भ्रातृव्याय प्रेतिहरति अरुणपिशङ्ग इत्यरुणापिशङ्गः अश्वः दक्षिणा एतत् वै वज्रस्य रूपं समृद्ध्य इति समृद्ध्यै आञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति स्वाहा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ Oh